Hello everyone, welcome to Sunya IAS, and this is your What to Read and How to Read video for Prelims Revision program. And in this video, we're going to cover the economics test number 7. Alright, so let's begin. Also, before starting, how are your tests going on? What is your performance? How are you finding the tests? And also, if you need some improvisations in these What to Read and How to Read videos, please do comment below and do let us know. Alright. Then, with respect to this test syllabus, we have to cover the balance of payments, followed by the foreign trade policy, the current account deficits, the foreign reserves, the trade agreements. Basically, in a sense, this test will cover the external economy, right? With respect and its relation with our national economy, how it is affecting. Then, what are various international organizations, their reports, and their indices we'll be covering in this test. If we talk about balance of payment, the first thing we have to do is the clear differentiation between what is BOP versus what is BOT. And while doing BOP, also do these two things: that what is the international level, what is the procedure or what is the institution which gives the procedure to regulate or to calculate this POP, and what is the procedure at a national level. All right, what is the organization which does it? Then what is the concept of world's net POP? What is RBI's method of classification to calculate the POP? RBI classifies the things into the current account and capital account. तो वो classification अच्छे से देख लेना, that is very important, and mark it 3-star. Then there are various other concepts like NTT, net terms of trade, or commodity terms of trade. देन इसका कंपैरिजन करना है ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसका कंपैरिजन करना है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी. इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को भी डबल स्टार मार्क कर लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन इफ वी मूव टू करंट अकाउंट, देर आर टू थिंग्स बेसिकली, द इम्पोर्ट आस्पेक्ट एंड द एक्सपोर्ट आस्पेक्ट्स. इम्पोर्ट्स में देर आर बेसिकली टू गुड्स विच स्पेसिफिकली गिव अ हेवी लोड ऑन अवर इम्पोर्ट्स एंड दस लीड टू अवर करंट अकाउंट डेफिसिट. उसमें वी हैव ऑयल एंड गोल्ड, दीज टू आर इंपॉर्टेंट. Oil में you have to see the government targets at what all government is doing to reduce the oil imports. कितना % हमने reduce करना है, वो सारे targets देख लीजिएगा. Then उसमें we have government policies as well, that is domestic oil exploration policies. उसमें NELP है of 1997 and HELP is of 2016, दोनों में differentiation कर लेना. Then what are strategic oil reserves? इसमें the aspect which is important is इसका mapping देख लीजिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारे strategic oil reserves located हैं, मैप बना के. देन व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द प्राइसिंग ऑफ क्रूड ऑयल. उसमें डिमांड साइड फैक्टर्स कौन से हैं, सप्लाई साइड फैक्टर्स कौन से हैं, उसमें इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का क्या रोल है, जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ ओपेक, ओपेक डज द कार्टलाइजेशन प्रोसेस, है ना. फिर रशिया का क्या रोल है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, एंड देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ईरान सैंक्शंस. देन सिमिलरली इसको रिलेट कर लेना, व्हाट इज द ऑप्शन विच इंडिया हैज़ बायलैटरल ट्रेड विद ईरान, है ना. इंडिया ने अभी ईरान रूबल अग्रीमेंट, एक रुपी रूबल साइन किया है, तो व्हाट इज दैट, उसको रिलेट कर लीजिएगा. Then with respect to second thing is gold. Gold में statistics देख लेना, import and export के क्या चल रहा है, what is its role in CAD again. Then there are few schemes with respect to control the gold imports, that is RBI's 80-20 scheme, sovereign gold bond scheme, gold monetization scheme, Indian sovereign gold coins. Then we have from the government side, recently in 2022 budget, the government has also increased the custom duty. So see this aspect also, that how it is going to affect it. UPSC is not going to as such ask government decrease किया increase किया, it will say that like one of the ways, चाहे 3-4 तरीके दे देगा, उसमें से इट लास्ट दैट दीज विल हेल्प टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड्स और रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है. सो उसमें इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी इज वन ऑफ द आस्पेक्ट विच गवर्नमेंट हैज टेकन इन 2022 बजट. देन व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द प्राइस ऑफ गोल्ड. उसमें डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स देख लेना. व्हाट वाज द रोल ऑफ कोविड की दौरान, दो व्हाट हैपेंड वाज कि अपना जो वर्कर्स थे उनकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गई थी, तो प्राइसेस रोज. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लेना. एक्सपोर्ट्स में टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स एंड टू इंप्रूव द करंट अकाउंट डेफिसिट वी हैव GI टैक्स. इसमें रेगुलेशन देख लेना, इंडिया लेवल पे हाउ दे आर रेगुलेटेड, वर्ल्ड लेवल पे व्हाट इज द अग्रीमेंट, जैसे ट्रिप्स अग्रीमेंट इज देयर, ठीक है. एंड डू सी द GI टैक्स विच हैव बीन अलॉटेड सिंस लास्ट 1 year, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें बाबा कल्याणी रिपोर्ट देख लेना, एंड दे आर नाउ ऑल्सो बीइंग कन्वर्टेड टू देश हब्स, ठीक है, लास्ट ईयर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देश हब्स. देन देर आर फ्यू मेजर्स टू कंट्रोल द करंट अकाउंट डेफिसिट. फ्रॉम गवर्नमेंट साइड बजट 2022 की प्रोविजंस देख लेना, व्हाट वर जस्ट 7-8 प्रोविजंस थी, वो इंपॉर्टेंट देख लेना. देन व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फ्रॉम 2015 to 2020. स्पेसिफिकली इसमें कुछ टॉपिक्स निकल के आते हैं, वैसे 7-8 पॉइंट्स हैं इसके टोटल, वो तो देखने ही देखने. बस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच यू हैव टू फोकस आर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन लेवी, देन टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, देन देयर वाज दिस एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, देन निर्यात बंधु स्कीम, एंड देन दिस MIES SIES, दैट वाज दिस मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम. इनको अभी कन्वर्ट कर
दिया गया रॉटटेप में. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, तो रॉटटेप का इन दोनों का दिस इज कंपैरेटिव एनालिसिस दोनों का देख लेना. देन व्हाट इज ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्कीम, एंड देन लास्टली असेंबल इन इंडिया. कल आपने पढ़ा होगा तो उसमें 2-3 पॉइंट्स देख लेना. दैट इज ऑल्सो हेल्प्स टू कर्ब द करंट अकाउंट डेफिसिट. देन इफ यू वांट टू सी द स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर में से, मतलब वी आर डूइंग दिस चैप्टर इन डिटेल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस BOP, agriculture, along with money, banking and monetary policy, these should be your top 3 priorities in economy. ठीक है, because around 70% of the questions, total economic questions in prelims are from these 3 only. All right, चलो. Now let's see the statistics. Then current account and capital account के क्या statistics रहे हैं past year के, वो देख लेना. Continuously rising, decreasing और zigzag. Then top 5 imports for India, top 5 exports for India, goods के category में. ठीक है. Then top 5 agricultural imports and exports. Then top 5 services imports and exports. Top 5 import destinations for India and top 5 export destinations for India. Then what are the famous countries with whom India has a trade deficit and whom India has a trade surplus? जैसे for an example with USA है ना, India has a trade surplus, so it is a very strange fact, but ऐसे facts देख लेना एक बार. Then overall टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है, वो भी देख लेना. देन व्हाट इज द ग्लोबली लार्जेस्ट इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ बोथ द गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज, तो ये स्टैट्स भी देख लीजिएगा. इफ यू टॉक अबाउट द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस इन दिस यूनिट, वी हैव टू सी द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ऑफ 2022 है. ये हर एक साल मार्च में आता है, ठीक है, तो एक बार हल्का सा देख लेना, ज़्यादा क्रैम मत करना. अभी 2023 मार्च में फिर से आ जाएगा तो उसको क्रैम कर लीजिएगा. देन ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स एंड रेमिटेंस रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक. दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दिस. देन इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल अकाउंट, उसमें देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FTI एंड FPI. दोनों की डेफिनेशंस कर लेना, स्पेसिफिकेशंस कर लेना, दोनों का डिफरेंस कर लेना, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स देख लेना, ठीक है, एंड देयर स्टैट्स कंटिन्यूसली राइजिंग, डिक्रीजिंग, जिगजैग एंड कोविड के टाइम पे कैसा ट्रेंड रहा था. देन FDI में 2 रूट देखने, वन इज ऑटोमेटिक रूट एंड अदर इज द गवर्नमेंट रूट. देन यू हैव टू सी द स्टैट्स ऑफ FDI, ठीक है, इसको इंडस्ट्री एस्पेक्ट से भी देख लेना एंड कंट्रीज एस्पेक्ट से भी देख लेना. दैट इज इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, किस में नहीं आ रहा, ठीक है, किस में ऑटोमेटिकली अलाउड है, किस में परमिशन चाहिए गवर्नमेंट का, दिस एंड दैट. देन कौन सी कंट्री से हमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका 3-4 टॉप मोस्ट कंट्रीज का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वार्टर कर लीजिएगा. देन व्हाट आर द फेमस एरियाज जहाँ पे 100% ऑटोमेटिकली परमिटेड है. देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकम्स द FDI फॉर ई-कॉमर्स, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा. देन FPI, व्हाट इज हॉट मनी इफेक्ट, इसमें एक टॉपिक बनता है इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिएगा. देन इफ यू टॉक अबाउट द रिपोर्ट्स इन दिस सेक्शन, तो यू हैव टू रीड द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय UNCTAD. This report becomes very important. Then with respect to the government intervention in capital account, तो एक तो गवर्नमेंट ने DIPP को DPIIT बना दिया था. पहले सिर्फ ये इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए होता था, अभी इट इज़ ऑल्सो फॉर इंटरनल ट्रेड. 2-3 और डिफरेंसेस हैं दोनों में, वो भी आप देख लीजिएगा. देन दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज अबॉलिश्ड, तो उसको भी देख लीजिएगा. देन होम मिनिस्ट्री का एक 2020 नोटिफिकेशन आया था जो FDI अप्रूवल्स को नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ परमिशन चाहिए अभी, तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशंस में था, वो नोटिफिकेशन अच्छे से देख लीजिएगा. देन हमारे पास दिस IFSC बना है गिफ्ट सिटी में. देन IFSC अथॉरिटी एक्ट आया है हमारा 2019 में. देन वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कैपिटल कंपनीज इन IFSCs. तो ये सब चीज़ें अच्छे से एक बार देख लेना, दीज आर द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस. देन इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल अकाउंट में डेट की अगर बात करें तो यू हैव टू सी द लोन्स एंड नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स, इनके स्टैट्स देख लेना, ठीक है, क्या स्टैट्स चल रहे हैं, इनका कंपैरिजन कर लेना दिस रेमिटेंस के साथ, ठीक है, कि क्या क्या रेमिटेंसेस चल रहे हैं, हाईएस्ट कंट्री हमें किससे आ रहे हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, कौन सी कितने नंबर पे इंडिया आता है. व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इंडिया इज रिसीविंग हाउ मेनी रेमिटेंसेस एंड ऑल. देन इफ वी टॉक अबाउट द लोन्स, तो देख लेना लाइक गवर्नमेंट साइड इज बोरोइंग मोर और प्राइवेट सेक्टर इज बोरोइंग मोर, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है. देन व्हाट इज द करेंसी डिनोमिनेशन, जिसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा डेट है, कि डॉलर्स में ज़्यादा है, युआन में ज़्यादा है, या किस चीज़ में ज़्यादा है, ठीक है. देन इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, उसमें NIIP देख लेना, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन ऑफ इंडिया. ये मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है, ठीक है. बैंक अकाउंट्स देख लेना, व्हाट इज वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, FCNR अकाउंट, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट, तो ये अकाउंट देख लेना. जस्ट सिंपली पता होना चाहिए कि वॉस्ट्रो अकाउंट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स इट. कैसे वो उसमें प्रोसीजर्स चलेंगे, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट ओवरहैंग प्रॉब्लम, जस्ट 1-2 लाइनों में पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है क्या, नथिंग इन डिटेल. देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शंस व्हाइल कैलकुलेटिंग द फाइनल नेट BOP. तो RBI यूजेस दिस, जब वो फाइनल नेट BOP निकालता है तो ये ऑटोनोमस अकोमोडेटिव 2 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं. फाइनली वो एरर एंड ओमिशंस के जरिए सब कुछ अपना नेट जीरो लाने के लिए ये चीज़ें यूज़ करता है, पर एक बार डिटेल में देख लेना इसको, ठीक है जी. देन व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, देन व्हाट इज दिस मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा. दिस सेज दैट देयर आर 3 थिंग्स जो विच कैन नॉट को एग्जिस्ट और कैन नॉट बी नॉर्मल एट वन सिचुएशन. तो उन 3 चीज़ों को देख लीजिएगा.
देन व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम्स, देयर आर वेरियस डिसइक्विलिब्रियम्स इन पीओपी, जैसे डेवलपमेंटल डिसइक्विलिब्रियम, उसके बारे में जस्ट एक लाइन पता होनी चाहिए कि सेक्युलर और लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमरिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम क्या है, एंड साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम क्या है. जस्ट वन लाइन डेफिनेशन, नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट. चलो देन अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू सी द आरबीआई's फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसके स्टैट्स चल रहे हैं, राइजिंग डिक्रीजिंग, किस कंपोनेंट का कितना वेटेज है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी देख लीजिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. मार्केट डबल स्टार. देन यू हैव टू सी द करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, फिक्स्ड कौन सा होता है, फ्लोटिंग कौन सा होता है, मैनेज्ड कौन सा होता है, आरबीआई कौन सा फॉलो करता है. फिर इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी अप्रिसिएशन, व्हाट इज करेंसी स्पेक्यूलेशन, तो ये तीनों देख लेना. देन 1 या 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम्स का जो हिस्टोरिक सिस्टम चलता था 1870 सॉरी टू लेके 1914 तक, वो देख लेना. फॉलोड बाय ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड जो अभी चलता है. ठीक है जी. देन व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ IMF's SDR. ठीक है, SDR इज अ मनी ऑफ IMF, तो उसका क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द वेरियस परसेंटेजेस ऑफ करेंसीज. ठीक है, कि डॉलर का कितना परसेंटेज है, युआन को कितना कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें SDR में देख लेना. देन व्हाट इज ग्लोबल करेंसी. ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन. इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर कर लेना कि चाइना वांट्स युआन एज अ ग्लोबल करेंसी. अभी डॉलर है तो इट वांट्स युआन, एंड सिमिलरली सो इट्स वांट डी डॉलराइजेशन. देन व्हाट इज करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, इसमें 2 एक्ट देख लेना, फेयर एक्ट एंड फेम एक्ट. पॉलिटी में हमने अच्छे से कर लिया था, दैट इज मोर देन इनफ. देन व्हाट इज आरबीआई's रिस्ट्रिक्शंस ऑन कन्वर्टेबिलिटी. ठीक है जी, कन्वर्टेबिलिटी डायमेंशंस देख लेना, कैपिटल अकाउंट में कितनी होती है वर्सेस करंट अकाउंट में क्या क्या हम कर सकते हैं, रूपी फुली कन्वर्टेबल है कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में नहीं है, दिस एंड दैट. देन देयर वाज दिस इशू ऑफ फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज पे SS तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशन से उन्हें देख लीजिएगा. देन 2022 में देयर वाज दिस फेमा रूल्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स. इन रूल्स को देख लेना, ओनली 2 or 3 points whatever are given on PIB's website are important, nothing else. Then there are these 2 concepts of VRR and FAR, voluntary retention route and fully accessible route. Just the definition आपको पता होना चाहिए कि ये हैं क्या. That's it. Then since last 1 or 2 years Indian rupee is falling very drastically. तो उसके लिए RBI के measures देख लेना और गवर्नमेंट साइड के measures देख लेना. इन टोटल कहीं भी मतलब आपने खुद के नोट्स बनाए हो या मतलब you get it on any website or so, तो वो cumulative measures देख लीजिएगा. Then there are this few miscellaneous concepts related to BOP, that is what is federal tapering and quantitative easing. This is done in USA, तो ये दोनों concepts देख लेना. Then what is the concept of helicopter money and zero interest rate regimes? What is concept of near and re? This has been a previous year question as well, तो इनको डिटेल में देख लेना थोड़ा. ठीक है. And then what is the problem of twin deficit? चलो. Then if we talk about our next topic, that is the international organization. International organization में अगर हम banks की बात करें तो you need to do World Bank, BRICS, ADB, AIIB, BIS, African Development Bank. एंड वर्ल्ड बैंक में इसको स्पेसिफिकली यार थोड़ा फोकस कर लेना, बिकॉज दिस इज अ फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी. वर्ल्ड बैंक में देख लेना व्हाट इज कंपैरिजन बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप. ठीक है, इसको 2 चीज़ें बनाती हैं, इसको 3 चीज़ें बनाती हैं. वैसे हैव नोट डाउन दिस IBRD एंड IDA मेक वर्ल्ड बैंक, while IFC, MIGA and ICSID when combined with IBRD and IDA form the World Bank Group. तो इनको ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक दो इनके एट्रीब्यूट्स पढ़ लेना. देन व्हाट आर द वोटिंग पावर्स, क्या ये शेयर होल्डिंग पे डिपेंडेंट है या नहीं, वर्सेस IMF में ये चीज़ कैसे चलती है, इसको भी एक बार देख लेना. आई हैव रिटन ईयर अ जनरल रूल. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने के एक तो उनका ईयर देख लेना, मेंबर देख लेना, वोटिंग और शेयर होल्डिंग देख लेना, हेडक्वार्टर्स, एंड इज इट इन्वॉल्व समवेयर इनटू द इंडियन प्रोजेक्ट्स समवेयर. ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना. ऑलराइट. देन इफ यू टॉक अबाउट IMF के फंक्शंस देख लीजिएगा, उसके फंक्शंस को कंपेयर कर लेना वर्ल्ड बैंक के साथ. व्हाट आर इट्स मेंबर्स, देयर आर वेरियस बेल आउट पैकेजेस ऑफ IMF, तो रिसेंटली किसी कंट्री को दिया है तो वो देख लेना. इफ इंडिया हैज एवर रिसीव्ड इट तो वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में जाके देख लेना. देन व्हाट इज द वोटिंग पावर्स, वो शेयर होल्डिंग पे डिपेंडेंट है या नहीं, यू सी दिस एस्पेक्ट. देन ऑल द रिपोर्ट्स एंड फैसिलिटीज ऑफ RBI. फैसिलिटी मतलब जैसे कोई क्रेडिट फैसिलिटी देता है तो उसको फैसिलिटी को एक मतलब सुविधा की तरह वो नाम दे देता है. ठीक है, तो व्हाट आर द वेरियस फैसिलिटीज, वो ऐसी 6-7 हैं तो वो सबको नाम देख लेना. दिस इज वेरी 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 important. Every year UPSC has a habit of asking a question on IMF. Then with respect to WTO, we are expecting a question this year for sure. Do various treaties and agreements of WTO, ministerial conferences, General Council of WTO. ठीक है, इसमें एक there is this concept of countervailing duties and anti-dumping duties with respect to WTO, इसे देख लेना. बाकी WTO का जो agricultural aspect है we'll be doing in agriculture के test. ठीक है, and that is very important. Then what is the concept of non-tariff barriers and tariff barriers, followed by what are the disputes of India into WTO. Various countries drag India into WTO, तो यूएस ने अभी ड्रैग किया था, वो डिस्प्यूट को देख लेना. व्हाट इज एप्लीएट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू WTO, और उसके बाद WTO का अपना ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है. देन सी दिस मल्टी पार्टी इन टेरिम आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ WTO MIPA. देन व्हाट इज दिस मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, व्हाट आर फूड सब्सिडीज एंड पीस क्लॉज. सिर्फ इतना ही देखना, बाकी कुछ नहीं एग्रीकल्चर का देखना इसमें. देन व्हाट इज कार्निस ग्रुप एंड देन व्हाट आर द पैकेजेस. पैकेजेस का मतलब यार ये होता है कि देयर हैव बीन वेरियस समिट्स ऑफ WTO, उसमें क्या क्या आउटकम्स निकल के आते हैं, व्हाट आर द लाइक सब्सिडीज और व्हाट एवर
द कंसेशंस आर प्रोवाइडेड टू वेरियस कंट्रीज बाय WTO, तो उसकी बात होती है उसमें। रिसेंटली अभी जिनेवा समिट हुआ 2022 में, ठीक है, तो उसको देख लेना। 2019-2020 में आई गेस देयर वाज दिस कजाकिस्तान समिट, बट दैट वाज अ फेलियर, ठीक है, तो इसको फोकस करना जिनेवा समिट को, अभी रिसेंटली 2022 में हुआ है। देन देयर वाज दिस बाली, दोहा एंड नैरोबी, इसमें दो दो तीन तीन पॉइंट देखना, बिकॉज दे आर कंडक्टेड बैक इन लाइक 2010, 2009, 2013, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो इसको डिटेल में नहीं करना, इसको डिटेल में करना है, ठीक है, चलो। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर रीजनल ग्रुपिंग, उसमें सार्क देख लेना, बीम्स्टेक, यही रूल फॉलो करना है। आसियान, SCO, IORA वर्सेस एपेक, ठीक है, ये दोनों इनको कंपैरेटिव एनालिसिस में करना। देन सी ब्रिक्स, OECD, OPEC, ये अपनी मिडल ईस्टर्न बॉडी ऑयल वाली बॉडीज हो गई। देन यू हैव टू सी द G20 में भी साका डिक्लेरेशन है, उसको डबल स्टार मार्क करो और वो देख लीजिएगा। देन वॉट देयर वाज दिस जय, ठीक है, जापान, देयर वाज दिस डोनाल्ड ट्रम्प ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंडिया। देन देयर वाज दिस ऑकस, क्वाड एंड I2U2, इनका भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेना। देन देयर वाज दिस G7, देन देयर वाज दिस D10 रीजनल ग्रुपिंग, ठीक है, उसमें भी उन्होंने एक 5G क्लब फॉर्म किया है, UK आई गेस प्रपोज्ड है, तो उसको देख लेना अच्छे से। देन इफ यू टॉक अबाउट मिडिल ईस्टर्न बॉडीज, GCC वर्सेस OIC, दोनों का कंपैरिजन देख लीजिएगा। Then if you talk about the trade agreements, you have to do the partial scope agreement, preferential trade agreement or FTA. Then see CIPA versus SICA. इंडिया एंड UAE ने अभी सीपा साइन किया 2022 में, तो उसको देख लीजिएगा। इंडिया एंड मॉरिशस ने CECPA साइन किया 2022 में, उसको भी देख लीजिएगा। नो डिफरेंस इन टोटल, बस एक दो क्लॉज का डिफरेंस होगा, वो उनको डिटेल में देख लेना कि क्या क्या डिफरेंस है। वैसे पता होना चाहिए कि इंडिया का किस किस के साथ है, किस किस के साथ नहीं है। देन व्हाट इज कस्टम्स यूनियन, फॉलोड बाय इट विल इवॉल्व इनटू कॉमन मार्केट, इट इवॉल्व इनटू इकोनॉमिक यूनियन। देन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो साइन एन ECTA इन 2022, उसको भी देख लीजिएगा। तीन एस्पेक्ट इसमें बनते हैं करंट अफेयर्स के, उसको देख लेना, दे आर इंपॉर्टेंट, राइट। देन देर आर दिस वेरियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका TPP हो गया, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP 11, TATIP, IPEF, RCEP। इसमें तीन चार रीजंस देख लेना, बिकॉज RCEP से इंडिया ने साइन नहीं किया, सो UPSC कैन सिंपली आस्क दैट व्हाट वर द फॉलोइंग रीजंस इंडिया डिड नॉट ज्वाइन, ठीक है, डाटा लोकलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कुछ रीजंस थे इंडिया के, तो उनको स्पेसिफिक रीजन जो PIP पे इंडिया ने, फॉरेन मिनिस्टर ने मतलब डिक्लेयर करे हैं, उनको देख लीजिएगा 5-6 रीजंस को। देन व्हाट इज द रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लॉज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नाफ्ता एंड साफ्ता। देन व्हाट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने करने हैं इसमें, प्रोटेक्शनिज्म कर लेना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड वॉर, व्हाट इज USA स्पेशल 301 रिपोर्ट, फॉलोड बाय व्हाट इज USA's कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वर्सेस इंडिया एंड UK ने एक रोड मैप अपना निकाला है ट्रेड के लिए 2030 तक, ठीक है जी। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस टेस्ट, एंड I seriously wish you guys all the very best. Do prepare well. I know the syllabus is quite a lot for this test, but with this, I guess economy is almost over. We just have one more test left, but this is the most important topic. So invest your this day. I know you all will be tired, but have a sleep and invest your entire night. Give tomorrow's test. Also, if you're facing any problems, do comment below. Also give us your reviews. Thank you so much.